So in the last class, we saw different types of functions. How many types of functions are there? Basically, there can be 4 types of functions. There are 4 types of functions. First one is it takes no argument and returns nothing. Second type is takes arguments and returns nothing. Third type is takes arguments and returns a value. And the fourth type is takes no arguments and returns a value. These are basically all permutations of these two. Okay, these are 4 types of functions. If the function is of type no arguments and returns nothing, then its declaration will be like no argument means return type is void, and then we'll write function name. Let's say fun is the function name, and it takes no arguments, so this will be empty. Arguments will be empty. Similarly, takes argument means it takes something, and returns nothing means the return type is void fun, and it takes some arguments, so there will be some arguments. The third type is takes arguments and returns a value. So if a function takes arguments and also it returns a value, then return type will be what? Return type will be either int, float, char, anything. Okay. The actually the return type will be data type. The data type of the return value. If you are returning int, then the return type will be int. If you are returning a value of type float, then the return type will be float. Okay. So the return type depends on the data type of the variable that we are returning. One arguments. And the last one is takes no argument and returns a value. And takes no argument means blank. Okay, so this is the recap of the last class. Okay, so now let's understand what is main function. We write main like this, right? We write int main, and in the end we are writing return 0. So basically what is this? Main is also a function. What is the return type of main function? Anyone? Well, what is the return type of main function? Int. Yes, return type of main function is int, and it takes no argument. Okay, so it is having no arguments in it. And what is this return 0? Why we are writing return 0? We could have also written return 100 or return 1, anything. Okay, why do we write return 0? Listen carefully. And one more thing, suppose we are making a function inside main function. Let's say we are calling a function called fun. Okay,
Then who is calling the main function? Main function is actually called by, sorry, who is calling the fun function? Yeah, writing a function name inside the main function means function calling. So who is calling fun? Fun is being called by main function. Okay. And who calls main? This is a interview question. Okay, this can be asked in interview, that who calls main function. So always remember, main function is always called by the operating system. Okay, main function is called by the operating system. We programmers don't call it. We can call a user defined function, but main is not a user defined function. It is a predefined function, and it is called by operating system, called by OS, operating system. Whenever we write a program and we compile our program, and whenever the program starts running, at that time the operating system calls main function, and then the main function gets memory in the RAM. Okay? So this main function, why do we write int? Okay, who told us to write int? There can be a question. So we write int because operating system works in a certain way. Okay, if we write a successful program, okay, if we write a successful program, what is a successful program? A program which has been compiled without any errors, that is called a successful program. For example, if I write hello world and I compile and run this program, so this is a successful program. Okay, hello world gets printed. And notice one thing, read this line: process exited after 0.1089 seconds with return value 0. Okay, this is the compilation time of this program, and this is the return value of this program. And if I remove this return, okay, if I remove this return, then what happens if I compile? Look, see, abhi we are getting return value 0, which means what? That operating system takes a feedback from the main function. Okay, whenever the operating system calls the main function, it will take a feedback from the main function. And what is that feedback? That feedback is an integer, and if the feedback is 0, the operating system understands that the program has been executed successfully. And if the feedback is non-zero number, then the operating system understands that the program has not been executed successfully. Okay, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग रिटर्न जीरो लिखे या ना लिखे, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग लिखते क्यों है? जस्ट बिकॉज इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, फंक्शंस का गुड प्रैक्टिस बनाने के लिए हम लोग रिटर्न जीरो लिखते हैं, बिकॉज मेन इज ऑफ टाइप इंट, सो वी राइट अ रिटर्न जीरो ताकि ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर सके रिटर्न टाइप को। बट अगर हम लोग नहीं भी लिखेंगे रिटर्न, तो भी अगर आप लोग चेक करोगे कभी, तो हमेशा रिटर्न वैल्यू ज़ीरो ही आएगा। रिटर्न वैल्यू ज़ीरो मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अच्छा, अगर मान लो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल नहीं होता, तब क्या होता? कुछ मान लो एक मिस्टेक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन मैंने बनाया नहीं, ठीक है, बस प्रिंटफ ऐसे कॉल कर दिया, ठीक है, तब क्या होगा? तब एक कंपाइलेशन एरर आएगी, और कंपाइलेशन एरर आने का मतलब रिटर्न वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो अभी चलो इसको कंपाइल करके देखते हैं। ये देखो, एक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्टर, अच्छा ये दिखा नहीं रहा है। अगर मान लो मैं ऐसे इनकम्प्लीट को सिंटैक्स लिख दूँ,
ये देखो, जैसे कि ये एक इनकम्प्लीट फंक्शन कॉल था, तो ये प्रोग्राम में क्या है, एक कंपाइलेशन एरर आ गया। तो यहाँ पे आप लोग देखो इधर, ये क्या लिखा हुआ है, रिटर्न वन एग्जिट स्टेटस। इसका मतलब एक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, तो जितनी बार भी हम लोग की प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाती, तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम को नॉन जीरो वैल्यू मिलता है। और नॉन जीरो वैल्यू मिलने के कारण ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझ जाता है कि नहीं, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है मेन फंक्शन को, और उसके बाद मेन फंक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम को एक फीडबैक देना कि मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो पाया कि नहीं हो पाया। अगर मेरा प्रोग्राम कंपाइल होता है तो मेन फंक्शन जीरो वैल्यू रिटर्न करके देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, और अगर मेरा मेन फंक्शन कंपाइल नहीं होता है ठीक से, तो वो एक नॉन जीरो वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो ये कंपाइल नहीं हुआ तो रिटर्न वैल्यू क्या आया, वन। ठीक है, तो मेन फंक्शन ने ऑपरेटिंग सिस्टम को वन रिटर्न करके दिया। इसका मतलब कि ये सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं था, एक गलत प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि मान लो एक ए फंक्शन है, और इसमें मैंने लिखा printf हेलो आई एम ए फंक्शन। यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देते हैं void a। अब यहाँ पे ए फंक्शन कॉल करते हैं 3 बार। ठीक है, यहाँ भी क्या लिखना होगा, void a। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, what will be the output of this program? It will print hello I am function 3 times. Okay, hello I am function a, let's print this 3 times। ठीक है, तो see it gets printed। And what happens if I call this function again inside function a? तो देखो क्या होता है, ये देखो इनफाइनाइट टाइम ये चलते जा रहा है फंक्शन। ये कर्सर देखो कैसे नीचे जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये जो फंक्शन है ये खुद ही को बार बार कॉल कर रहा है। ठीक है, हाँ ये देखो प्रोग्राम मेमोरी के बाहर चल गया, तो क्या है, प्रोसेस एग्जिटेड आफ्टर जीरो आफ्टर 16.64 सेकेंड्स विद रिटर्न वैल्यू 3221225 ठीक है, तो ये क्या, एक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न किया ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन फंक्शन, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चल गया कि इस प्रोग्राम का सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं हुआ था, दिस प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। ओके, तो ये प्रोग्राम का सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते पारे नहीं, बिकज এ ফাংশন কল যখন আমরা করলাম তখন এই ফাংশনটা কল হলো, অ্যান্ড এই ফাংশনটা কল হলে এই স্টেটমেন্টটা প্রিন্ট হলো hello I am functioning। and after this line when we call this line a, we are calling the a function again। তো এইখানে যখন কম্পাইলার আসলো তাহলে এ কে আবার কল করলো, আবার এ কে কল হলে আবার প্রিন্টএফ চললো, আবার একে কল করলে আবার উপর আসলো, আবার প্রিন্টএফ চললো। সো এটা একটা লুপে ফেসে গেল प्रोग्राम। सो ये जो ए प्रोग्राम है, मतलब ए फंक्शन, ये एक लूप में फंस गया, इनफाइनाइट लूप में। एंड दोज हु नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन यू कैन रिलेट दैट दिस इज अ रिकर्सिव प्रोग्राम। ठीक है, इसी को एक्चुअली हम लोग कहते हैं रिकर्शन। जब एक खुद को कॉल करता है तो उसे हम लोग कहते हैं रिकर्शन। ठीक है, ये एक्चुअली एक रिकर्शन हो गया यहाँ पे। ये रिकर्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, आज फंक्शन कंप्लीट करेंगे पहले। अच्छा, किसका अनम्यूट हो गया माइक, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। दुर्गेश म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, so let me create
some more functions. For example, if I create function b, the right, hello, I am function b. Okay. And I have to declare b here also. And if you remember, I told on the last day that this is global function declaration. Declaration. Okay. ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है फंक्शन का, और यहाँ फंक्शन कॉल होगा b. I'm calling b. This is function call. Okay. Function call. And this is what this is function definition. Function definition. Yeah. If I compile this program, what will be the output of this program? Anyone? कोई बोल सकता है क्या आउटपुट आएगा? It will print one for void A, for void B. What? Two Void times. void void भी क्यों प्रिंट करेगा? Why will it print void A? Void int A and int B. Yes, I am talking about the output. We are calling the function A and we are calling the function B. So what will be the output? Output will be hello, I am function A, and hello, I am function B. When I Hello, call, I am function B. yes, when I call a function here, then this line gets printed in the output, and when I call function b, then this line gets printed in the output. Okay. Look. Hello, I am function A, hello, I am function B. Okay. Acha, tell me one thing. If I write void b on top of void A, then what happens? तो भी क्या आउटपुट सेम रहेगा? Void B will be print. Sorry, print. Hello, I am a function B will be printed first. Why? I think that the output will remain same. Because Yes, आउटपुट will remain same. यहाँ पे हम लोग जो डिक्लेयर कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कॉलिंग का सीक्वेंस क्या है उससे फर्क पड़ता है. First we are calling function A, then we are calling function B. So the sequence of output will be same. Okay. The sequence is and same. so what if we call function? If you want to print this line first, then you have to call B first. Okay. अभी पहले B print होगा. Hello, I am function B. Hello, I am function A. তো তুমি কল কি করছো সেটা ম্যাটার করে, ঠিক আছে? Declaration doesn't matter. Whether you write A first or B first, whether you declare A or B, that doesn't matter. आउटपुट में क्या आएगा वो मैटर करता है फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस में. ओके, रिमेंबर दिस. Sir, what if we call function A under that curly braces and function B under that curly braces? Braces. This It will अंडर print like infinite. Yes. ए के अंदर अगर ए कॉल कर लिए तब तो इनफाइनाइट रिकर्शन हो जाएगा, और अगर इसके अंदर बी कॉल किए Sir, in तो case अभी of both, I'm telling that in case of इन केस ऑफ बोथ मीन्स लाइक दिस. A and B. हाँ, तो ये इनफाइनाइट रिकर्शन हो जाएगा. इट विल बी स्टक इन इनफाइनाइट लूप.
लूप, ये इनफाइनाइट लूप में अटक जाएगा। ये फंक्शन ए के बाहर निकल ही नहीं पा रहा है प्रोग्राम। लुक द आउटपुट इज continuously hello I am function A, because program has been stuck in this infinite loop. A function is calling itself. Okay, so this is an infinite recursion, or you can say in simple terms infinite loop. So we suppose if I call function B from A, okay, और यहाँ से B हटा देते हैं, I am calling only function A, okay, तो इसका आउटपुट क्या होगा? Anyone? Look at the code carefully. First, it will Yes, first it will print. print hello, I am a function Hello, A. I'm a Then it will function print A. hello, I am function B. Yes. Q, because we are calling function A, okay, and when we call function A, the program enters function A, and then it prints the first line of the function, and then in the second line we are calling function B, so again the program goes Sir, into in this, yeah, and then this line gets sir, printed. A program, হ্যাঁ বলো। স্যার এই প্রোগ্রামটাতে যদি আমরা ওই void b ওপরে যে ফাংশন ডিক্লেয়ার করেছি ওখানে যদি আমরা void b ডিক্লেয়ার না করি তাও তো আউটপুটটা আসবে। না, তাহলে আসবে না। কেন আসবে না? আচ্ছা, এটা আগে প্রিন্ট করে দেখাচ্ছি। সি, आउटपुट इज हेलो एम फंक्शन है, हेलो एम फंक्शन भी होता है, एंड इफ आई रिमूव दिस लाइन, ठीक है, तो कमेंट आउट इसको कर देते हैं, तब क्या होगा? व्हेन वी कॉल फंक्शन ए, तो ये तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक सही है, बट व्हेन वी कॉल फंक्शन बी फ्रॉम हियर, तब एक कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। क्या एरर आएगा? बी इज अननोन, ठीक है, बी का तो कोई डिक्लेरेशन ही नहीं है, ना ही ग्लोबली इसको डिक्लेयर किया गया, ना ही मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया, तो इस केस में एक कंपाइलेशन एरर आ जाएगा कि बी नॉट नोन है। ये देखो, एग्जीक्यूट करके देखो, ये देखो क्या है, बी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ठीक है, तो कोई भी फंक्शन कॉल करने के पहले और उसका सपोज हम डिक्लेरेशन लोगों करना को जरूरी है। पहले मतलब ऐसे प्रिंट करना है कि हेलो आई एम फंक्शन ए और फिर हेलो आई एम फंक्शन बी, फिर हेलो आई एम फंक्शन, मतलब ऐसे साइमल्टेनियसली इनफाइनाइटली। हाँ, हाँ, तो उसके लिए क्या करना क्या कर पड़ेगा? सकते हैं हम लोग? जैसे ए से बी को कॉल करा दो, ठीक है, फिर हमारा प्रोग्राम बी में जाएगा, और फिर बी से ए को कॉल करा लो, ठीक है, तो इससे क्या होगा? सबसे पहले ए में जाएगा प्रोग्राम, फिर ये प्रिंट होगा, फिर बी कॉल होगा, उसके बाद बी में जाने के बाद हेलो फंक्शन बी प्रिंट होगा, फिर ए कॉल होगा, ए कॉल होने के बाद वापस प्रोग्राम ऊपर आ जाएगा, तो वापस ए प्रिंट होगा, फिर बी कॉल होगा, तो ये कंटिन्यूसली प्रिंट करते जाएगा। ये देखो, हेलो आई एम फंक्शन ए बी दिख रहा है, ये बहुत फास्ट हो रहा है, ए बी हो रहा है बहुत फास्ट, ठीक है। अच्छा, अब एक मेरा क्वेश्चन है, अभी ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, फंक्शन बी को सिर्फ कॉल कर रहे हैं, तो आउटपुट हिसाब से क्या आना चाहिए? हेलो एम फंक्शन है, हेलो एम फंक्शन बी, ठीक है, यहाँ तक तो बात सिंपल है। अच्छा, अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को, मतलब इस डिक्लेरेशन को, ठीक है, यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से हटा दूँ, ग्लोबल डिक्लेरेशन हटा के मैं लोकल डिक्लेरेशन करूँ, void a एंड void b, ठीक है, ये क्या हो गया? ये लोकल डिक्लेरेशन हो गया। लोकल मतलब इनसाइड अ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के अंदर अगर आप कोई भी डिक्लेरेशन करते हो तो उसे लोकल डिक्लेरेशन कहा जाता है, लोकल डिक्लेरेशन। ग्लोबल क्या होता है? ग्लोबल वो होता है जो कोई भी फंक्शन के अंदर नहीं है, ठीक है, नॉट इवन इनसाइड द मेन फंक्शन। तो जब void a और b हम लोग बाहर लिख रहे थे तो वो ग्लोबल डिक्लेरेशन था, लेकिन अब हम लोग वहां से हटा के इसको अंदर ले आए,
तो ये क्या बन जाएगा, लोकल डिक्लेरेशन। तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, सेम रहेगा क्या, क्या लगता है आप लोग को? आउटपुट तो सेम ही रहेगा। हाँ, आउटपुट सेम ही रहेगा। अच्छा, ये देखो क्या आ गया एक एरर, int b was not declared। ओ ठीक हाँ, है, बी तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। b डिक्लेयर्ड नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, जबकि b तो डिक्लेयर हमने किया था, फिर b डिक्लेयर्ड नहीं है, ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम लोग ये जो वॉइड ए लिखे हैं यहाँ पे, इसके अंदर तो वो डिक्लेयर्ड नहीं है ना, वो तो इंट मेन जो है एग्जैक्टली, वहां पर ही डिक्लेयर्ड है। इस एरर को हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, इस एरर को हम लोग ठीक कर सकते हैं, या तो यहाँ लिख दो, ठीक है, यहाँ एक वर्ड भी लिख दो, यहाँ अगर वर्ड भी लिख देंगे तब क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर, ए फंक्शन के अंदर अगर वर्ड भी लिख देते हैं तो क्या होता है, बी कॉल होने के पहले कंपाइलर को एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मिल गया कि यस बी इज अ फंक्शन, तो अब वो आराम से खुशी खुशी इसको कॉल कर लेगा। ठीक है, इसको अभी रन करके देखो, ये देखो अब हो गया कॉल, हेलो एम फंक्शन है, हेलो एम फंक्शन बी। ठीक, अच्छा बट सपोज हमें मेन के ही अंदर এক্সকিউজ মি স্যার। हाँ यस टेल। স্যার বলছি যে আপনি বললেন ভয়েড এটা যেটা লোকাল ডিক্লারেশন করছি ভয়েড এ আর ভয়েড বিটা, हम्म, তো যখন আমরা ভয়েড এটা ডিক্লেয়ার করছি তো ভয়েড এটা আমরা ভয়েড এ ফাংশনে ঢুকে যাচ্ছি তখনই, हाँ কিন্তু স্যার এটা তো ফাংশন কল তো হচ্ছে না, কিন্তু এতদিন তো স্যার ফাংশন কল হলেই ঢুকতো, তো এটা কি ডিক্লারেশন করলেও ফাংশনের ভেতর ঢুকে যাবে? फंक्शन डिक्लेयर करने से नहीं घुस रहे हैं, घुस रहे हैं हम लोग यहाँ से। ये देखो, जैसे कि हम लोग फंक्शन ए जब करते हैं ना, तो मतलब डिक्लेयर, ठीक है, तो ये जो फंक्शन बी है ये एक्चुअली ए के अंदर डिक्लेयर्ड नहीं है। ठीक है, और हम लोग जब ए को कॉल करते हैं तो हम लोग सीधा ए के अंदर आ जाते हैं। अब ये जो फंक्शन बी है इसका डिक्लेरेशन किसको पता है, ये पता है सिर्फ मेन को, क्योंकि ये लोकल है, लोकल जो भी डिक्लेरेशन होता है वो सिर्फ मेन को पता होता है, एंड जो ग्लोबल डिक्लेरेशन है वो सबको पता होता है। ग्लोबल डिक्लेरेशन इज नोन टू एवरी फंक्शन एंड लोकल डिक्लेरेशन इज ओनली नोन टू मेन फंक्शन। हाँ ग्लोबल, ग्लोबल जब हम लोग करते हैं डिक्लेरेशन तब सबको पता है, जैसे कि ये वॉइड भी है तो अब ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है। ठीक है, अभी ये ग्लोबल है, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन का जो होता है, मतलब जो जो फंक्शन ग्लोबली डिक्लेयर्ड है उसका न्यूज़ हर एक फंक्शन को पता है, मेन ऑल्सो नोज, ए ऑल्सो नोज एंड बी ऑल्सो नोज। ठीक है, बट इफ वी डिक्लेयर अ लोकल फंक्शन, अगर हम लोग एक लोकल फंक्शन करते हैं डिक्लेयर void a एंड void b, तो ये जो a और b डिक्लेरेशन है, दिस इज दीज टू डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स, तो ये दो डिक्लेरेशन किसके अंदर हुआ, ये हुआ मेन के अंदर। तो a नाम का एक फंक्शन है, ये किसको पता है, ये मेन को पता है, और b नाम का एक फंक्शन है, ये किसको पता है, ये भी मेन को पता है। ठीक है, लेकिन a को नहीं पता है कि b नाम का कोई फंक्शन है, और b को नहीं पता है a नाम का कोई फंक्शन है। तो इसीलिए जब हम लोग कॉल करेंगे इसको तो ये दिखा देगा बी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि बी नाम का एक फंक्शन है, ये ए को नहीं पता है, ये पता है किसको, मेन को, बिकॉज दिस इज अ लोकल, लोकल मीन्स लोकल टू द फंक्शन। और ये जो ए नाम का फंक्शन है ये डिक्लेयर्ड कहाँ हुआ है, ये हुआ मेन के अंदर। ठीक है, तो इट इज लोकल टू मेन, लोकल टू मेन, इट इज ऑल्सो लोकल टू मेन। तो ए और बी के बारे में सिर्फ मेन फंक्शन को पता है, इन दोनों को नहीं पता कि ए को नहीं पता बी नाम का कोई है, बी को नहीं पता ए नाम का कोई है। बट हम लोग अगर इसको ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं तो सबको पता है कि ए और बी नाम का कोई फंक्शंस है, मेन को भी पता है, ए को भी पता है, बी को भी पता है।
तो इसीलिए इन द फर्स्ट क्लास आई टोल्ड यू दैट फॉर बीइंग एट अ सेफ साइड ऑलवेज डिक्लेयर फंक्शंस ग्लोबली। इससे क्या होगा, हर एक फंक्शन को एक्सेस मिल जाएगा तुम्हारे फंक्शन का, ठीक है। बट लोकली अगर तुम लोग डिक्लेयर करते हो, अगर आप लोग लोकली डिक्लेयर करते हो तो उसका एक्सेस हर फंक्शन को नहीं होगा।